Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss about electron transport chain and oxidative phosphorylation. First of all, a quick overview of what we have learned about cellular respiration. That is a process in which food is broken down to release energy. It consists of a step that is termed as glycolysis, in which glucose is converted into pyruvate with the production of ATP and reduction of NAD to NADH2. Then pyruvate enters the matrix of the mitochondria, and in a link reaction it is converted into acetyl coenzyme A with the reduction of NAD to NADH2. Then this acetyl coenzyme A enters the Krebs cycle, and in a cyclic manner it results in the production of ATP and reduction of NAD to NADH2 and reduction of FAD to FADH2. As we have seen that this process also comes in the direct production of ATP, but we will be more focused on these reduced electron carriers or the dinucleotides like NADH2 and FADH2, because they can transfer their electrons to the electron transport chain, and when their electrons move in the electron transport chain, and then they are finally accepted by the oxygen to form water molecule, they also pump protons into the intermembrane space, which generates a proton gradient, and that proton gradient then synthesizes ATP in a process that is termed as oxidative phosphorylation. ठीक है, और ये दोनों processes, electron transport chain और oxidative phosphorylation का process, they both occur in the inner mitochondrial membrane because it has got different complexes that we will see in a moment. So we will be discussing about the oxidation of NADH2 and FADH2 separately. लेकिन सबसे पहले हम structures की बात करें तो we have this inner mitochondrial membrane which has got different complexes. Then this is the intermembrane space and this is the matrix of the mitochondria. अगर यहाँ के complexes की बात करें तो this one is the complex 1 that is also termed as NADH dehydrogenase complex और NADH coenzyme Q reductase, ठीक है, जो कि 42 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स पे मुश्तमिल एल शेप्ड एक प्रोटीन होता है या प्रोटीन कम्प्लेक्स है, ठीक है। उसकी दो आर्म्स हैं, एक आर्म जो है वो एम्बेडेड होती है इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर और सेकंड जो है वो प्रोट्रूड आउट कर रही होती है इनटू द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट जो है वो आप कह सकते हो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक फ्लेवोप्रोटीन जिसके अंदर फ्लेवन मोनोन्यूक्लियोटाइड मौजूद होता है, फ्लेवन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और दूसरा इसके अंदर जो मौजूद होते हैं वो आयरन और सल्फर के सेंटर्स मौजूद होते हैं, FeS, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दिस वन इज प्रेजेंट सॉल्युबल लिपिड सॉल्युबल जो है ये प्रोटीन होता है जिसको यूबिक्विनोल या आप कोएंजाइम Q का नाम दे सकते हो, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है और फिर ट्रांसफर कर देता है कम्प्लेक्स 3 के पास। कम्प्लेक्स 2 हम FADH2 की ऑक्सीडेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कम्प्लेक्स 3 जिसको कोएंजाइम Q साइटोक्रोम ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज का नाम भी दिया जाता है, या फिर आप इसको साइटोक्रोम BC1 कम्प्लेक्स का नाम दे सकते हो क्योंकि इसके अंदर दो तरह के साइटोक्रोम्स होते हैं, वन इज साइटोक्रोम B and the other one is cytochrome C1, and beside that it has also got आयरन सल्फर क्लस्टर्स, ठीक है। फिर हमारे पास साइटोक्रोम C होता है, वो भी आयरन कंटेनिंग एक साइटोक्रोम ही है, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 4 होता है, इसके अंदर भी इसको साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का नाम दिया जाता है क्योंकि इसके अंदर भी उसी तरह से दो तरह के साइटोक्रोम्स होते हैं, एक जिसको कहा जाता है साइटोक्रोम A और दूसरा जिसको साइटोक्रोम A3 का नाम दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये ATP सिंथेज है, प्रोटॉन जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं यहाँ पे प्रोटॉन मोटिव फोर्स के थ्रू, तो दे रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ATP, जो कि अभी हम देखेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर जो NADH डिहाइड्रोजनेज है वो सबसे पहले ऑक्सीडेशन करता है NADH2 की, ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर देता है इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म के अंदर NAD पॉजिटिव, और साथ ही साथ में यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं और साथ ही साथ दो प्रोटॉन्स भी रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। दोज टू इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय दिस फ्लेवन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, और ये फिर सबसे पहले कन्वर्ट हो जाता है अपनी रिड्यूस फॉर्म के अंदर FMNH2 के अंदर, ठीक है। फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को सिक्वेंशली ट्रांसफर कर देता है, जो 6 यहाँ पे मौजूद आयरन सल्फर सेंटर्स होते हैं, 6 होते हैं यहाँ पे, सिर्फ हमने एक ही ड्रॉ किया है, ठीक है। इनकी खास बात यह है कि इनके अंदर जो आयरन मौजूद होती है वो सबसे पहले +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है तो वो चली जाती है इनटू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है,
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर जब इलेक्ट्रॉन को वो रिलीज करती है तो वो दोबारा से +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चली जाती है। ठीक है, यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होते हैं सीक्वेंशियली आयरन सल्फर सेंटर्स से, और वहाँ से होते हुए वो यहाँ पे कोएंजाइम Q, जो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि लिपिड सॉल्युबल मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ठीक है, और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होते हैं तो यहाँ पर मौजूद प्रोटॉन्स, यहाँ पर पहले से मौजूद ये जो प्रोटॉन्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये ट्रांसफर हो जाते हैं यहाँ से मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। तो आपने देखा कि यहाँ से 4 प्रोटॉन जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 पंप कर देता है इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अच्छा, और वो जो प्रोटॉन्स यहाँ और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जब यूबिक्विनोल या कोएंजाइम Q जब एक्सेप्ट करता है तो साथ ही साथ में ये जो 2 प्रोटॉन्स यहाँ पे मौजूद हैं इनको भी एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, और ये अपनी रिड्यूस फॉर्म जिसको हम कह सकते हैं कि QH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये QH2 के अंदर जैसे ही कन्वर्ट होता है तो फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक एक करके ट्रांसफर करता है कॉम्प्लेक्स 3 के पास। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है तो सेमी हाइड्रोक्लोरीन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर जब दूसरे इलेक्ट्रॉन को इस कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफर करता है तो ये दोबारा से अपनी ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ में वो जो 2 प्रोटॉन इसने पहले से जो ऑब्टेन किए हुए थे उनको पंप कर देता है इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। जैसे ही हमारे पास कॉम्प्लेक्स 3 जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है तो हमने बात की थी कि इसके अंदर साइटोक्रोम बी, आयरन सल्फर और साइटोक्रोम C1 होता है। तो साइटोक्रोम बी जो है वो भी उसी तरह से हीम कंटेनिंग एक साइटोक्रोम है, उसके अंदर भी आयरन मौजूद होता है। उसी तरह से +3 फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके +2 फॉर्म में चला जाता है, फिर उसी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, और आयरन सल्फर जो है वो एक्सेप्ट करता है इसको। ठीक है, +3 से वो भी +2 के अंदर, जब इलेक्ट्रॉन को वो रिलीज करता है आगे तो फिर दोबारा से +3 फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक है, और फिर एट द एंड साइटोक्रोम C1 उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, वो भी उसी तरह से +3 से +2 फॉर्म में चला जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स को वो एक एक करके जब साइटोक्रोम C को देता है तो दोबारा से +3 फॉर्म में, सॉरी यहाँ पे +2 है, +3 फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ पर से भी 2 प्रोटॉन्स को फिर दोबारा से यहाँ से उठा के बाहर भेज दिया जाता है। ओवरऑल जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स 3 है वो ये वाले 2 प्रोटॉन्स और यहाँ वाले जो 2 प्रोटॉन्स है उनको कुछ हम अभी देखेंगे किस तरह से पंप कर देता है बाहर वाली साइड पे। तो टोटल 4 प्रोटॉन्स कॉम्प्लेक्स 3 पंप करता है। तो ये 2 प्रोटॉन्स मौजूद हैं, इनको फिर पंप कर देता है वो इनटू द आउटर मेम्ब्रेन स्पेस। वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे थे, ये जो साइटोक्रोम C1 से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आ रहा है, उसको फिर एक्सेप्ट करता है यहाँ पे साइटोक्रोम C, जो कि हमने बात की थी कि एक सॉल्युबल प्रोटीन है जो कि आउटर साइड ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन मौजूद होता है। उसमें भी उसी तरह से आयरन मौजूद होता है +3 स्टेट के अंदर, वो पहले कन्वर्ट हो जाता है +2 स्टेट के अंदर, और जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से, ये मोबाइल होता है, यहाँ से इधर मूव कर सकता है। ठीक है, तो जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर साइटोक्रोम या साइटोक्रोम ऑक्सीडेज या कॉम्प्लेक्स 4 को देता है तो वो दोबारा से +T ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आ जाता है। ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉन को एक एक करके वो इस तरह से आगे ट्रांसफर करता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 4 की बात करें तो इसमें हमने बात की थी कि साइटोक्रोम A होता है, साइटोक्रोम A3 होता है। ठीक है, इनमें भी उसी तरह से आयरन या साइटोक्रोम का, यहाँ पे भी आयरन मौजूद होगा, यहाँ पे भी आयरन होगा, और इनके अंदर 2 कॉपर कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं या कॉपर एटम्स होते हैं, एक कॉपर A और एक कॉपर B। कॉपर A इज लिंक्ड विद साइटोक्रोम A, और कॉपर जो B होता है वो लिंक्ड होता है साइटोक्रोम A3 के साथ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो कुछ यूँ होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है कॉपर A। ठीक है, जो सबसे पहले +2 स्टेट में होता है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वो +1 स्टेट में आ जाता है, फिर उसी इलेक्ट्रॉन को वो रिलीज करता है हीम एटम के ऊपर, जो कि +3 से +2 स्टेट में चला जाता है, और फिर वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो दोबारा से +3 स्टेट के अंदर चला जाता है। ठीक है, और ये कौन सा है, साइटोक्रोम A का हीम है। ठीक है, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला जो एटम होता है वो होता है जी हीम A3 का आयरन। ठीक है, वो भी इसी तरह से +3 से +2 स्टेट के अंदर जो है वो आप कह सकते हो कि वो शिफ्ट होता है। ठीक है, और फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन्स को फिर एक्सेप्ट करने वाला जो है वो कॉपर B एटम होता है, +2 से वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आ जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ से भी इसी तरह से वही वाले 2 प्रोटॉन से पंप हो रहे होते हैं इनटू दी
इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अब इसी तरह से सिक्वेंशियली जब वो इलेक्ट्रॉन एक ट्रांसफ़र करता है और फिर दोबारा दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, तो यहाँ पे मौजूद होता है जो साइटोक्रोम A3 के साथ लिंक्ड होता है ऑक्सीजन का एटम, ठीक है, यहीं पे इसके साथ ही मौजूद होता है। और हम ऑक्सीजन मालिक्यूल वैसे होता है, लेकिन हम दो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से अगर हम देखें तो हम उसको हाफ कर लेते हैं, ठीक है। तो साथ में वहाँ से आने वाले दो इलेक्ट्रॉन्स और इसी जहाँ से सबस्ट्रेट प्रोटॉन जिनको कहा जाता है, जो कि मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, वो प्रोटॉन्स एक दूसरे के साथ जब कंबाइन हो जाते हैं तो दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और जब यहाँ से चार प्रोटॉन्स यानी कि दो मरतबा जो NaDH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास पूरा एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंज्यूम होगा, उसके रिजल्ट में दो वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर फ्रॉम NaDH2 टू ऑक्सीजन विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। और साथ ही साथ में आपने देखा कि पंप हो रहे हैं प्रोटॉन यहाँ से, चार कम्प्लेक्स 1 से, चार जो है वो कम्प्लेक्स 3 से, और दो कम्प्लेक्स नंबर 4 से। अब प्रोटॉन की पंपिंग की वजह से यहाँ पे हमारे पास दो तरह की एक फोर्स जनरेट होती है, जिसको प्रोटॉन मोटिव फोर्स का नाम दिया जाता है, ठीक है, जिसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक उसका कंपोनेंट होता है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन्स की जब यहाँ से पंप होते हैं इधर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, तो उनकी कंसंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ यानी कि मैट्रिक्स की तरफ अंदर आना चाह रहे होते हैं, जिसको आप पीएच ग्रेडियंट का नाम भी दे सकते हो, या फिर जो हमने पहले नाम लिया केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और दूसरी बात जो यहाँ पे हो रही होती है वो ये हो रही होती है कि पॉजिटिव चार्ज बाहर ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आप पंप कर रहे हो पॉजिटिव चार्ज को, तो ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और अंदर वाली साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। साथ ही साथ में कुछ यहाँ पे ये भी हो रहा होता है कि अगर हम एक डायग्राम को यहाँ पे देखें, तो ये डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी, जो कि हमने लिंक रिएक्शन में भी डिस्कस की थी, कि जो डिफरेंट जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस को इन एंड आउट ऑफ द इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये जो जिसको आप डाइन्यूक्लियोटाइड ट्रांसपोर्टर का नाम देते हो, तो वो ADP को जो कि 3 नेगेटिव चार्ज वाली होती है उसको इनसाइड ऑफ द मैट्रिक्स मूव करता है, और ATP4 यानी कि 4 नेगेटिव चार्ज वाली को बाहर मूव करता है, ठीक है। तो एक नेगेटिव चार्ज बाहर जा रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और अब क्या होता है कि इसी वजह से ये जो चार्ज की सेपरेशन की वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स या प्रोटॉन मोटिव फोर्स के जो कंपोनेंट्स हैं, जिसकी वजह से प्रोटॉन टेंड टू मूव फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, या फिर पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ वो आना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें एक और चीज़ भी होती है कि आपने ये देखा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि पायरोवेट अगर इनसाइड ऑफ द मैट्रिक्स मूव कर रहा है तो उसके लिहाज से हाइड्रोक्सिल आयन बाहर मूव कर रहा है, और यहाँ पे भी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अंदर मूव कर रही है, तो उसके लिहाज से हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन बाहर मूव कर रहा है। और वन हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू वन प्रोटॉन इनसाइड ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, वो इधर अंदर मूव कर जाते हैं। तो आपने एक प्रोटॉन को याद रखना है कि वो अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। और अब क्या होता है कि इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स के थ्रू यहाँ से तीन प्रोटॉन्स इस पंप के थ्रू अंदर आते हैं इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो ATP सिंथेज को रोटेट करते हैं। एक प्रोटॉन आता है तो 120 डिग्री रोटेट करता है, उसमें सबसे पहले जो है वो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंड करता है, फिर दूसरा प्रोटॉन मूव करता है तो वो ATP कन्वर्ट कर देता है, तीसरा प्रोटॉन आता है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास ATP बन जाती है और वो सॉरी रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो हम जरा साथ साथ देखते जाते हैं वो कैसे होता है। तो आपने देखा एक प्रोटॉन आया तो ADP जो है वो और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो इसके साथ अटैच हो गई कम्प्लेक्स के साथ। दूसरा प्रोटॉन आया तो उसके रिजल्ट में ATP बन गई, और तीसरे प्रोटॉन के रिजल्ट में ATP रिलीज हो गई। तो ये तीन प्रोटॉन से हमारे पास एक ATP बनी, लेकिन साथ में यहाँ वाला एक प्रोटॉन भी आपने काउंट करना है, तो टोटल ओवरऑल चार प्रोटॉन से फोर प्रोटॉन से एक ATP बनेगी, ठीक है। तो इस लिहाज से हमारे पास यहाँ से तो तीनों कम्प्लेक्सेस ने तो टोटल 10 प्रोटॉन कम्प्लेक्स जो है वो पंप किए थे, चार यहाँ से, चार यहाँ से, और दो कम्प्लेक्स नंबर 4 ने। तो ओवरऑल एक NADH से फिर हमारे पास 2.5 ATP बनते हैं इस तरह की कैलकुलेशन से। और अगर हम बात करें अबाउट FADH2 ऑक्सीडेशन की, उसकी ऑक्सीडेशन कुछ किस तरह से होती है, तो अगर हम उसके अंदर जो कम्प्लेक्स नंबर 2 इन्वॉल्व होता है, कम्प्लेक्स नंबर 1 जो है वो हमने ओमिट कर दिया है, वो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता। और कम्प्लेक्स नंबर 2 इज ऑल्सो टर्म्ड एज सक्सीनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज, जिसका एक पार्ट होता है
जिसको सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स का नाम दिया जाता है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम वही वाला एंजाइम जो कि क्रेब्स साइकिल में सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करता है, क्योंकि वो इसी कॉम्प्लेक्स का एक इंटेग्रल पार्ट है, यहीं पे वो प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, वो प्रोसेस कैसे हो रहा होता है कि यहाँ पे हमारे पास मौजूद होता है सक्सिनेट, और वो सक्सिनेट कन्वर्ट हो रहा होता है इनटू फ्यूमरेट। ठीक है, फ्यूमरेट के अंदर डबल बॉन्ड जो है वो इनकॉर्पोरेट हो रहा होता है और दो हाइड्रोजन एटम्स और इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो रहे होते हैं। अब उन इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन एटम्स को कौन रिसीव करता है? तो यहाँ पे मौजूद FAD जो कि कन्वर्ट हो जाता है FADH2 के अंदर, और यानी कि रिडक्शन हो गई। और फिर जब वो ऑक्सीडाइज होता है तो यहाँ पे उसी तरह से मौजूद होते हैं आयरन सल्फर के सेंटर्स। ठीक है, आयरन और सल्फर के सेंटर्स मौजूद होते हैं जो कि उसी तरह से Fe+3 स्टेट से कन्वर्ट होते हैं Fe+2 स्टेट के अंदर, और जब वो ऑक्सीडाइज होते हैं तो दोबारा से +3 स्टेट में चले जाते हैं, और उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं कोएंजाइम Q के पास। ठीक है, कोएंजाइम Q इलेक्ट्रॉन्स को भी और प्रोटॉन्स को भी यहाँ से वो एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाता है रिड्यूस फॉर्म QH2 के अंदर। फिर एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके जो है वो आप कह सकते हो कि वो पार्शियल जो रिड्यूस फॉर्म होती है या सेमी हाइड्रोक्विनोन के अंदर कन्वर्ट होता है, फिर एक और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके वो अपनी ऑक्सीडाइज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और साथ ही में दो प्रोटॉन्स को वो मूव कर देता है फ्रॉम द मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। और साथ में फिर वही अपने इलेक्ट्रॉन्स को जब वो ट्रांसफर करता है कम्प्लेक्स 3 के पास, साइटोक्रोम B से आयरन सल्फर और फिर साइटोक्रोम C1 के पास, और वही वाले इलेक्ट्रॉन जब साइटोक्रोम C की तरफ जा रहे होते हैं तो दो प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर पंप कर दिया जाता है। और उसी तरह से इलेक्ट्रॉन एक एक करके साइटोक्रोम C जो है वो ट्रांसफर करता है साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, और उसी तरह से कॉपर आयरन आयरन और फिर कॉपर B2, और फिर वही वाले इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेता है ऑक्सीजन। ठीक है, और वो वाटर बना लेता है, दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाफ ऑक्सीजन। ठीक है, और साथ ही में दो प्रोटॉन फिर दोबारा से यहाँ से पंप हो रहे होते हैं इनटू दी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पे कम्प्लेक्स 2 ने कोई भी प्रोटॉन पंप नहीं किया। ठीक है, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस नहीं था। कम्प्लेक्स 3 ने 4 प्रोटॉन, दो ये यूबिक्विनोल वाले Q साइकिल वाले और दो अपने वाले। ठीक है, तो 4 ओवरऑल, और यहाँ से कम्प्लेक्स नंबर 4 ने 2 प्रोटॉन पंप किए। और हमने पहले भी बात की थी कि यहाँ से जब ATP सिंथेज के थ्रू 3 प्रोटॉन्स आते हैं और चौथा कंपनसेट करने वाला वही वाला जो हमने पहले बात की, तो 4 प्रोटॉन जब यहाँ से आते हैं तो उनसे एक ATP बनती है। तो 6 प्रोटॉन FADH2 के दे वुड बी इक्वल टू 1.5 ATP। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को इसीलिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है कि साथ में हम FADH2 और NADH2 की ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं, और साथ में ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करके यानी कि फॉस्फोराइलेशन कर रहे होते हैं, और यही मेजर सोर्स है ATP प्रोडक्शन का किसी भी सेल के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।